not able to attend. Yeah. So, since all of you know, I am a doctor. I am a homeopathic doctor. तो हमें बहुत personality mindset पे काम करना पड़ता है. So I have started, picking up the difference कि ठीक है अभी ये earth element से आ रहा है, तो उसको ये medicine देना चाहिए. और ये air लग रहा है, ये ether लग रहा है. तो actually I started enjoying it better. Mm. Hello, Yes, yes. am I Well, audible? yes. Yeah. And not just with patients, but the people I am interacting कि now I know कि ये कौन से element से आता है, तो उसको क्या करके कैसे that conversation Mm. should be converted into the positive ways and all. So it's helping actually, it's helping. And did it help you in some conversions in business? Yes, definitely क्योंकि वो conversation style ही बदल जाता है ना. Mm. And now we are more prepared Ah. कि टेबल के ये साइड क्या है और कैसे करना है, वो साइड कैसे डिलीवर करना है. सो And यस, इट इज हेल्पिंग, इट इज हेल्पिंग. also I want to know, so you must have also experienced the parents as a couple आए होंगे आपके पास बच्चे के लिए, यस, right? So you saw two different elements married to each other. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. वो जो अपोजिट एंड क्रॉस यू हैड एक्सप्लेन ना, कि अभी ये अर्थ से है तो नेक्स्ट वाला विल बी एयर, एयर और वाटर ऐसा. और एयर और वाटर से है तो दिस विल बी फायर काइंड ऑफ. हाँ हाँ. तो now it has become little not easy yet because I'm still evolving. हम्म. बट अभी समझ में आ रहा है कि ठीक है इसको क्या टाइप का काउंसलिंग चाहिए और इसको क्या टाइप का काउंसलिंग चाहिए, सो दैट दे विल बी ऑन सेम पेज. हम्म. और समझना तो है और समझ के लेना भी है, दिखाना भी है कि यस आई एम आई अंडरस्टैंड what the plight you are in, but also there are ways to do it. It has become little easy, but I guess in coming time it will become more easy, I feel. Oh, lovely. Lovely. Yeah. Beautiful. Beautiful. Thank you. Yes, yes. Oh, great. Let Yes, me also share certain experiences. please, please. Yeah. So basically, when I talk to, I'll go one by one. When I talk to people out around me, whether they are in my society or probably on calls, when I talk to certain candidates, I try to analyze them. कौन सी स्पीड में बात कर रहा है, कैसे पूछ रहा है, क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है, आर दे वेरी मच स्पेसिफिक, लाइक if there is a certain meeting to be scheduled, in that case are they very specific, the speed that they talk to, because I'm not able to see them, right? Once I see them I can understand, but that's how I'm analyzing. But पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि major of the population that I'm interacting with is either air or earth. So that's what I personally have experienced. Ether, I have not much got a certain, मतलब बच्चा तो है ही मेरा ईथर में, लेकिन when I came down from the station that day, particularly I was talking to my husband and he is an earth element, that I have understood. So I was asking him, let me know, देखो ऐसा प्लान करने वाला ट्रिप, मतलब आई वाज जस्ट चेकिंग इट आउट फॉर माई सेल्फ, देखो ये वाला ट्रिप पसंद आएगा गोवा का अगर समझ ले, या ऐसा प्लान ट्रिप पसंद आएगा, तो बोला प्लान ट्रिप पसंद आएगा, तेरे को सरप्राइजेस पसंद आएंगे कि ये पसंद आएगा. तो आई वाज चेकिंग इट आउट टू अंडरस्टैंड माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट. सो दैट्स हाउ इट वाज. एंड overall it was an excellent way of analyzing personalities. So whenever I talk to someone, no, whether it is a gym also, अब इस फ्रंट रो वाले होंगे तो मेरे को ऐसा लगता है अच्छा ये ना फायर एलिमेंट वाले होंगे शायद. So that's how it is. So overall I have started understanding about the personalities, and according to your sessions I keep on checking that my images also कि उसमें क्या क्या चीजें हैं. लेकिन yes, as Shabir sir also rightly stated, there are certain personalities in which their profession itself says that they have to be authority वाला, लेकिन होते नहीं है वो, हो सकता है वो कोई और एलिमेंट को बिलोंग करते हैं. So that's how my experience was. It was an extremely learning experience, is still going on, but yes, extremely deep involved into understanding the personalities and the elements. Oh, lovely. Thank you. Thank you. Good. Yes, Vedant. Hello. Hello. Hi, Prantik sir. How are you? Doing well, dear. Yeah,
मुझे इतना मजा आया है ये सब सीखने के बाद में। जी पहले थोड़े दिन तो मैं ऐसे मतलब कॉन्शियसली सारी चीजें कर रहा था कि ये अर्थ है, ये वाटर है, इसके साथ ऐसे काम करना है, इसके साथ ऐसे काम करना है। बट राइट ना वो सिस्टम में इतना अच्छे से बैठ गया है ना कि आई एम जस्ट लविंग इट। फॉर एग्जाम्पल एक इंसिडेंट बताओ तो कल मेरे मम्मी पापा का है ना ऐसा छोटा सा झगड़ा हो गया। एंड आई लाइक हाँ ये एयर है ना, इसको आराम से काम करना था, वो अर्थ को फटाक से चाहिए था, इसके वजह से। एंड मेरा ऑटोमेटिकली वो होने लगा है। सो आई एम लविंग इट। सेकेंड, आई हैव समवन राइट नाउ कस्टमर हम्म जो अर्थ है। तो हम्म आपने जैसे कहा था कि एक पीच बुक वगैरह देने के लिए, हम्म तो आई हैव दिस बुक ओवर हियर। हम्म तो वो आते हैं ना, तो मैं सिर्फ रख देता हूँ। वो ऐसे रख दिया था सामने मैंने, मैं कुछ नहीं किया था। वो आने से पहले मैंने बराबर ऐसा सेटअप वगैरह कर दिया था। उन्होंने लिया, पढ़ा, बाद में बोला ये मैं घर पे लेके जा सकता हूँ। वो घर पे लेके गए, घर से लेके आए और 2 प्रोडक्ट्स उन्होंने और ऑर्डर किए। सो दिस इज व्हाट अमेजिंग रिजल्ट आई गॉट। बाद में और एक ऐसे कपल आए थे जो हस्बैंड में एयर थे हम्म एंड द लेडी वाज एन अर्थ। क्योंकि हम्म उनके पास सारी चीजें डिटेल में थी और सब चीजें उन्हें पता थी। हम्म सो अगेन आई केप द बुक ओवर देयर। मतलब मैं अभी कोई भी आता है ना तो मैं पेज बुक में सामने रखता हूँ कि इनकेस कोई अर्थ आ गया तो वो पढ़ेगा। बाकी मुझे पता है कि एयर वाटर हाथ भी नहीं लगाएगा, क्योंकि वो मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो लोग देखते भी नहीं, यार ठीक है छोट तू बात कर करके वैसा। हम्म एंड दैट डे उनसे इतना अच्छे से बात हुआ कि अर्थ से अर्थ की तरह से उनके टोन में उनको जैसे समझेगा, स्ट्रक्चर वाइज बात किया उनसे, सब लिख के दिखाया उन्हें। एंड एयर जो था उनसे फुल मजा मस्ती में बात किया, आप आओ मजा करेंगे, अरे आप तो आके देखो वगैरह ऐसे किया। एंड एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन दैट लेडी सेड मी कि आपके साथ जो आप जिस हिसाब से बात करते हो ना वो बहुत अच्छे से करते हो, आप बहुत अच्छे से मिक्सअप कर लेते हो और ऐसे लगता ही नहीं है कि पहले बार मिल रहे हो। सो ऑल थैंक्स टू यू गाइस फॉर दिस अमेजिंग थिंग। एंड मेरे घर पे मतलब एक मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, तो ऐसे बातें करते करते मेरे बहन को भी वगैरह बताया ना। सो वो अभी कभी भड़क जाती है, कभी कुछ हो जाता है ना, मैं तू फायर है ना, तू इसी से हो रहा है, तू तेरा फायर कम कर, जरा वाटर बढ़ा समझ रहा। तो ऐसे सब चल रहा था, मजा आ रहा है मुझे बहुत ज्यादा। आई एम एंजॉइंग दिस न्यू knowledge and information I have got, and I'm really loving it. So thank you so much once again. थैंक यू आवर प्लेजर डियर आवर प्लेजर लवली लवली थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ओके आई एम वी लव्ड इट ओके ग्रेट रूपा एनीथिंग विद योर प्लान Yeah. So no plans, but yes, any challenges you all are facing. That is something that you want to discuss or you want to focus on to it, so that we'll be able to take that in this session. Yeah, यस Vedant. ये सर एक चैलेंज अभी आ रहा है कि एयर का मुझे क्वालिटी पता है कि इट इज वो आएगा जाएगा आएगा जाएगा, बट अगर उसको कंसिस्टेंसी में लाना है, क्योंकि आई हैव माय कस्टमर्स हु आर एयर एंड वाटर मोस्टली, तो उसको अगर कंसिस्टेंटली एक चीज पे रखना है तो उसके लिए व्हाट आई कैन डू, बिकॉज वो नहीं समझ रहे मुझे। दिस इज वन चैलेंज यू विल ऑलवेज फेस और मैंने वर्कशॉप के टाइम पे भी बोला था वन एलिमेंट जिसके साथ डील करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है दैट इज एयर एलिमेंट खासकर कंसिस्टेंसी के मामले में ओके इट विल बी देयर सो यहाँ पे तुम्हारी क्रिएटिविटी आएगी हाउ विल यू कीप दैट एयर एलिमेंट एंगेज्ड ओके सो फर्स्ट थिंग ओके वन रिकमेंडेशन इज एयर एक ही मूड में रोज नहीं आएगा ओके एक ही मूड में नहीं आएगा तो उसका उस वक्त जो मूड रहेगा लाइक वो कभी सैड हो सकता है कभी एग्जॉस्टेड हो सकता है कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहेगा तो उसका जो मूड रहेगा उस हिसाब से उसके साथ वर्कआउट करो या फिर बातें करो ओके अगर वो थोड़ा सा लो एनर्जी में है ऐसा है सो उसके साथ क्या करो कि ओके वुड यू क्या बोलते हैं आप आज ज्यादा एक्सरसाइज करना चाहोगे या फिर आप एनर्जी को कंजर्व करना चाहोगे ओके हेवी एक्सरसाइज करना चाहोगे लाइक लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारे लैंग्वेज में अगर बात करेंगे सो अगर वो थोड़ा लो एनर्जी है तो उसको कार्डियो करा दो लेग्स का काम मत करो लेग्स वर्कआउट मत करो बिकॉज वो ऑलरेडी लो है ही डज नॉट वांट हिज एनर्जी टू बी एग्जॉस्टेड मोर क्योंकि एयर का मेन सोर्स इज एनर्जी अगर वो एनर्जी निकल गया तो डिप्लीट हो गया तो और भी इरिटेट हो जाएगा वो ओके सो ये चीज दूसरा अगर हाई एनर्जी है तो उसके उसके साथ मतलब वो 100 स्क्वाट्स करने के लिए तैयार है तो 150 भी करवा सकते हैं उस दिन क्योंकि वो एनर्जी में है तो उसका एनर्जी को पहले रीड करना दैट्स वन
सेकेंडली, कंसिस्टेंसी में लाने के लिए वैरायटी इज कंसिस्टेंसी ऑफ एलिमेंट, ऑफ एयर एलिमेंट। ओके, उसको रोज कुछ अच्छा, एयर एलिमेंट ऑल्सो लाइक्स इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। सो कैन यू टॉक सम इंटेलेक्चुअल टॉक्स, ओके, कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग। सो ऐसे कुछ स्टिमुलेशन, मेंटल स्टिमुलेशन चाहिए, क्योंकि एक ही बार एक ही प्रकार से एक ही बात करेगा ना, दे विल गेट बोर्ड बिकॉज मोनोटोनस हो जाता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टॉक्स विद द एयर एलिमेंट। तो बातें भी अच्छी चल रही है और तुम्हारा वर्कआउट स्टाइल भी रोज अलग होना चाहिए। अगर वो एक जगह पे आके वर्कआउट कर रहा है तो उसका जगह बदलते रहो। डोंट गिव वन मैट और वन प्लेस ओनली। ओके, वैरायटी इज ऐसा। तो टॉक्स में वैरायटी चाहिए, एक्सरसाइज में वैरायटी चाहिए। ओके, एक दिन पूछो कि वुड यू लाइक टू जस्ट हैव जुम्बा काइंड ऑफ थिंग, उसको पूछ लो। तो अगर हाँ चलेगा तो वो कर लो। तो उसके एनर्जी को मर्ज मैच करते हुए तुमको वो करना पड़ेगा। सो वैरायटी इज कंसिस्टेंसी, राइट? सो दैट्स मोर ऑफ देयर। Yes. And one more element जो था वो था अर्थ. So I have this client once again. तो अर्थ का वो प्रॉब्लम हो रहा है कि चेंज उनको अच्छा नहीं लगता है. नहीं, तो उनको मैं मील प्लान दे रहा हूँ, बार बार लिख के दिया है, व्हाट्सएप पे भेजा है, लाइक फाइल बना, पॉइंट टू पॉइंट लिख के दिया है प्रॉपरली. बट स्टिल ही इज नॉट रेडी टू चेंज हिज थिंग्स. सो अगर उनके साथ इज फॉर नॉट टू एग्जांपल चेंज हिज थिंग्स मतलब? मील प्लान में, हाँ, हाँ, मतलब कि उनका जो टाइमिंग्स है ना, वो मतलब मॉर्निंग में सारी चीजें कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अभी अपना शेक है हर्बल लाइफ का, राइट? तो शेक के बाद में कुछ नहीं खाना है, बट वो यहाँ पे शेक भी पियेंगे वर्कआउट के बाद में और घर पे जाके खाना भी खाएंगे. सो इट इज गिविंग रिवर्स इफेक्ट टू हिम. बराबर। सो आई टोल्ड हिम कि आपके मतलब उनके बेनिफिट में उनसे बात भी की की सर असं करणार तर तुमचा वेट लॉस नाही होणार किंवा तुमचं विजरल फॅट कमी नाही होणार, उलट वाढणार. सो अकॉर्डिंगली आई टोल्ड हिम ऑल्सो. बट वो चेंज करने को थोड़ा सा डिफिकल्ट या फिर चैलेंजिंग जा रहा है. सो हाउ आई कैन डील विद दैट? ओके, अगर तुम उसको सडनली बोलोगे तो उसके लिए वो चेंज लाना मुश्किल रहेगा। ओके. तो यू हैव टू से ओके, ये मुझे मालूम है आपके ओल्ड जो हैबिट है या पैटर्न है, इमीडिएटली आप नहीं बदल पाओगे, बट दिस इज व्हाट वी हैव टू डू फ्रॉम डे 10। ओके. सो यू आर नॉट गिविंग सरप्राइज कि आज से ही बंद करो। सो ये 10 दिन जो है, ये 10 दिन का शेड्यूल में जो है, आपका हैबिट रहेगा कि आप घर जाके वापस खाना खाओगे। ओके, आज पहला दिन है तो शायद आप वही नॉर्मल खाना खाओगे, लेकिन इट इज लाइक हैविंग 2 meals. 2 meals उसी को पूछना, इफ यू हैव 2 meals एट अ टाइम व्हाट विल हैपन टू योर बॉडी वेट? इट विल इंक्रीज। डू यू वांट टू डू दैट? नो। सो क्या करो, आप ये शेक पीना, घर जाने के बाद यू रिड्यूस स्लोली ग्रेजुअली रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द फूड। एंड ये उनको एक टारगेट भी देना, बाय 10th डे यू शुड बी स्टॉपिंग योर लंच। ओके. गॉट इट. तो ये तुम एक गेम प्लान दे रहा है, प्लान गुड, सडन रेजिस्टेंस। ओके. 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 गॉट इट. या परफेक्ट। थैंक यू सो मच. डॉक्टर पुरुआ। Yes, so बीच में जो you were running certain exercises on group कि ये क्या है वो क्या है. If you keep continuing doing that ना, तो that will be a great help because थोड़ा revision हो जाता है when the real answers come out. रूपा, वीडियो वगैरह फोटोग्राफ्स तो हो गया होगा, ये हुआ हाँ, है मैंने आपके? ना लास्ट वॉज महाभारत, जिसमें से सिर्फ मिस्टर शाबिर ने आंसर किया, बाकियों को मैंने क्लू दिया बट नोबडी आंसर्ड एट समहाउ. महाभारत पे आके सब रुक जाते हैं, सबके सब रुक जाते हैं. वी डू इट फॉर कॉर्पोरेट्स एंड वी डेलिबरेटली वी प्लान कि महाभारत हम एंड में रखेंगे, सबसे एंड में लास्ट रखेंगे. यस. लिटरली उसके बाद कम्युनिकेशन बंद होता है। बंद हो जाता है somehow. सो मुझे भी वो पता नहीं चला कि क्या करना है. मैंने बोला ठीक है, एनीवे फॉलो अप सेशन में पता चल जाएगा करके. सो एनीथिंग न्यू इफ आई एम कमिंग अप विथ, आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप एंड आई विल गिव यू. इट कैन बी इजी, इट कैन बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, या मे बी बहुत ऑब्वियस हो जाता है कुछ चीजें कि हाँ ये तो अर्थ ही होगा, ये तो एयर ही होगा करके, बट देन इट विल हेल्प यू. सो एक केस चीज. स्टडीज, केस स्टडीज, ओके, आई विल सेंड द केस स्टडीज देन. केस स्टडीज, वी हैव गॉट 10 केस स्टडीज, या डिफरेंट डिफरेंट केस केस स्टडीज आई स्टडीज। कैन सेंड, बट you all have to read. सो आई डोंट नो मिस्टर शबीर के लिए कितना इंटरेस्टिंग रहेगा, बट देन मैं मिस्टर शबीर को साइड में रख देती हूँ नहीं, अभी. ही लव्स टू रीड। I would also read.
Yeah, No, yeah, yeah. you will because read, but I was not sure about Mr. Shabir. So, Shabir ठीक will है. read because it's new, na. I will not read. Rupa, No, it's new one, na, so he'll read. It's a new case study. No, you paste that in ChatGPT and ask her to talk to you or read it for you. that's a good one, Priya. गुड, जो खुद करने वाली वो शब्बीर के नाम पे बोल रही है. नहीं, perfect, Yes. perfect. We'll So do, I'll start we'll posting send that. Yeah. more case studies from today, so that will sure. help you. And Behavioral checklist, Prantik, if you can, and thoda enhance kar lo ki how they can actually go through the behavioral checklist and recognize their old customers for the existing customers Hmm. for so good practice. behavioral checklist is one of the most important क्योंकि that's a summary of the entire all the elements. It's a summary. अगर behavioral checklist आपके वर्कबुक में देखेंगे, so the whole idea is वो behavioral checklist को पूरा पढ़ लो 3-4 बार. So जैसे जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करो, because words creates images in the mind. So the moment you start reading, आप देखोगे कि वो characteristics वाले लोग आपके सामने सामने आना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनका नाम पीछे लिख लीजिएगा. तो once you have that, it becomes a ready reckoner for all of you. Okay. Okay, so it becomes ready reckoner आराम से. जैसे अभी वेदांत, now the interesting part. Suppose आपके कोई एक फैमिली मेंबर है जो ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एंड उन्होंने भी एलिमेंट्स कर लिया है, बट दे हैव नॉट इंटरेक्टेड विद दैट क्लाइंट. ओके, बट वो फाइल अगर है तो उसको सिर्फ बोल सकते हो, अरे वो फाइल में देख लो, उनका नाम देख लो कहाँ पे आता है, तो तुमको समझ आ जाएगा. सो सर अगर देख ले, हाँ ये सारा चीज है, ओके, नाउ दे नो हाउ टू इंटरेक्ट. सो दैट बिकम्स वेरी इजी. इट बिकम्स रेडी रेकनर पूरा येलो पेजेस जैसा. सो एक वो Hmm. चीज है. आपका एलिमेंटल ग्रोथ इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. हम उसको अगले सेशन के लिए रखते हैं, बिकॉज अगर उसमें सब होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. And when that is happening, नेक्स्ट Prantik? मंडे. नेक्स्ट मंडे. Next Monday online. 90. Yeah, 90. 19th. Okay. So are you going to share a message on group? हाँ. Yes, yes, Okay. I'll do that. Sure, sure. Sir, just one request. Can we make the session like 8 से 9:30, वो 8:30 से अगर करे तो, क्योंकि I think that is something challenging मेरे लिए भी हो जाता है वैसे, if it is possible. 8 बजे चैलेंजिंग. हाँ, 8 थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कि क्लाइंट्स वगैरह भी रहते हैं ना, so 30 is good, like फिर chances of वैसा है, ओके, I feel. रूपा देख लो. Yes. So Rupali has thing, I connect with my team only on Zoom, which is in Poland. Can we have some questionnaire which I can try to understand them? Okay, great. Can you have some questionnaire? Okay. So Rupali, just help me understand. आप वो questionnaire दोगे कैसे to help you identify? Hello. जी. Maybe when I connect with them, I can ask them few casual questions just to understand. Because I can't see them, so these are the only questions which would help me to understand which the element they belong to. Okay, okay, okay. Okay, so उस हिसाब से. And हाँ. um, how frequently do you interact with them? Daily. Daily. Okay, okay, चलेगा. So this is the thing with whom I work daily. Okay, so let me frame out ऐसे casual questions. मैं normally क्या क्या पूछता हूँ just to have an understanding. I'll send that. I'll send that to Rupa. She'll put it in the group. Okay. Okay, like very generic casual questions as a friend, Yeah, as a yeah. colleague आप पूछ सकते हो. Done. I'll do that. Mhm. ये हो गया, ये हो गया. Okay, fine. Okay, so let's take something very interesting. That is triggers. कहाँ चला गया? हाँ.
now this is I call it as advanced तत्वबोधिका। मतलब एडवांस इसलिए क्योंकि इसका एक्सटेंशन ही है, एक ही दिन में वो सारा चीज लेना मुश्किल होता है, इसलिए दिस आई एम कीपिंग दिस डेटा बिट सेपरेट। इसका भी आपको पीडीएफ अलग से आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। लेट्स स्पेंड टाइम इन अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। नाउ each element deals with triggers. What is a trigger? Okay? अगर मैं ऐसा एक बंदूक आपके सामने रख दिया, is it lethal? Is it dangerous? हाँ, मैंने it सिर्फ is. बंदूक रखा है। Hmm. The gun on its own is not lethal. नो, राइट, सिर्फ गन रखा है, इट इज नॉट लीथल। वो गन उठा के आप पे मारता हूं, इज इट लीथल? Yes. Yes. लीथल, लीथल, Lethal मतलब सर मैं समझ नहीं Until पाई। you लीथल यानी pull the जानलेवा। trigger, तब तक नहीं। हाँ हाँ। लीथल यानी जानलेवा। तो अगर मैं सिर्फ बंदूक उठा के मारता हूं, आपका जान ले सकता है क्या वो? नहीं। 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 ओके, इट विल बी हार्मफुल, इट हम्म। विल अफेक्ट यू, बट इट मे नॉट बी लीथल। बट उसी के बदले अगर मैं ट्रिगर पुल कर लिया तो अब तो वो शूट आउट। शूट आउट, इट्स लीथल। अब देखिए, यही चीज थोड़ी देर पहले आपने बोला इट इज नॉट हार्मफुल, जब आपके सामने रखा था, बट एक ट्रिगर पुल करने के बाद नाउ इट बिकम्स हार्मफुल एंड लीथल। ऐसा क्यों? सो दिस इज व्हाट द वर्ड ट्रिगर जो आया है, वो इस एग्जैक्टली इस पिस्टल ट्रिगर से आया है। ट्रिगर का मतलब है समथिंग दैट चेंजेस इट्स बिहेवियर। ऐसी कुछ चीजें जो उसकी चीज, उसका बिहेवियर को चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिगर। सो हर एक एलिमेंट का अपना एक ट्रिगर होता है, जिस वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड what are your triggers. So now what you do is you make a small note. आपको क्या क्या चीजें स्ट्रेस देती है, आपको गुस्सा लाता है, आप अपसेट होते हो, मेक अ नोट। क्या क्या चीजें आपको स्ट्रेस देता है, आपको गुस्सा दिलाता है, और आप अपसेट होते हो उन चीजों से। You mean Prantik as a voter? What triggers me? क्या गुस्सा नो, दिलाता? नॉट एज अ वोटर, एज अ पर्सन। As a person. Okay. ऑलराइट। सो अपने जो भी पॉइंटर्स लिखे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, और एक एक करके हम अभी एलिमेंट्स में जाते हैं। What are the triggers of each element? Okay, again we are going very deep, lot of information. You don't have to copy everything, जैसे मैंने कहा सारा नोट्स आ जाएगा। और अगर ध्यान से देखोगे, एलिमेंट का लोगो भी चेंज हो गया है, चिड़चिड़ा हो गया है ये थोड़ा अर्थ। अभी अर्थ चिड़चिड़ा क्यों होता है? ओके, क्या क्या चीजें इसको ट्रिगर करती है, यानी अपसेट, एंगर एंड स्ट्रेस देती है। चलो लेट्स टेक केयर। सो बिकॉज हमारे यहाँ पे बीच में पूर्वा है, तो पूर्वा विल वैलिडेट द पॉइंट्स। सो लेट्स सी। So sudden unplanned change, it will give lot of stress and it triggers the earth element. Trigger मतलब उसका behavior बदल जाएगा, या तो वो एक्सट्रीम शांत हो जाएगा, या तो चिढ़ेगा, या तो थोड़ा सा abruptly bluntly कुछ बोलेगा, सब कुछ। Let me give you an example. जब लॉकडाउन में हम थे, सो लॉकडाउन के टाइम पे, सो देयर वर लॉट ऑफ ऑनलाइन मीटिंग्स आई वाज अटेंडिंग। सो एक बार रोटरी क्लब का कुछ एक मीटिंग था, तो मैं अटेंड किया, मी बीइंग एयर। अच्छा, उसमें मैसेज आया था रजिस्टर बिफोर 7:45 PM। मीटिंग था अगले सुबह 8 बजे। मी बीइंग एयर, हाँ, उठ गया तो रजिस्टर कर लूंगा, ऐसा वाला था, उठ गया तो रजिस्टर कर लूंगा। अब मैं उठ गया 7 बजे, रेडी वगैरह होके, आई रजिस्टर्ड एट 7:30, आई लॉग्ड इन एट 7:45। 8 o'clock वो विंडो स्टार्ट होता है। जैसे ही वो विंडो स्टार्ट होता है, एक भाई साहब आते हैं, ही वॉज द प्रेसिडेंट, क्या बोले, चेयरपर्सन बोलते हैं उधर, तो चेयरपर्सन ऑफ दैट मीटिंग, बोलते हैं, आई एम सो अपसेट विद द पीपल, even after sending the message that you have to fill up before 7:45 PM, people are sending this morning. How will I fill it up?
Now people have. I saw 6 people who have registered now. How will I adjust? Now what has happened is he had created an Excel sheet. अब Excel sheet पे इतना 20 लोगों का या 21 लोगों का नाम आ चुका था, इतना नीचे गैप था, उसमें लिखा जा सकता है, वो नहीं, बिकॉज कॉलम ड्रॉ नहीं किया था उसने, और हैंड रिटन ऐसे रैंडमली लिख नहीं सकता है वो. सो ही वाज सो अपसेट कि भाई आई हैव नॉट ड्रॉन द कॉलम, हाउ विल आई फिल अप द नेम, सिस्टमैटिक नहीं रहेगा. गॉट. तो जो वाइस चेयरपर्सन था वो बोलते, सर एक काम करो, आपके पास जो अभी लिस्ट आया है ना, पहले आप उनके नाम बोल दो, उनके साथ पहले डिस्कशन कर लेते हैं, एंड जो रिमेनिंग 6 लोग हैं ना, हम उनको बोलते हैं एक एक हैंड रेज करो और इंट्रोडक्शन दे दो. हाँ, गुड. देन ही स्टार्टेड. सो सडन, मतलब इट वाज स्क्रिप्टेड 7:45 से पहले, एंड एनीथिंग दैट वेंट बियॉन्ड 7:45, अगले दिन 7:30 he got so upset. So any such sudden thing, surprise, very bad trigger. Okay, कभी मत करना. Now the whole idea is, please समझो, ये जो हम समझ रहे हैं, अगर हम अर्थ एलिमेंट के साथ डील कर रहे हैं तो हमें ये नहीं करना है. हमको दूसरा भी एस्पेक्ट जो हम अगले सेशन में लेने वाले हैं, दैट इज इफ इट इज हैपनिंग विथ यू, हाउ विल यू मैनेज योर स्ट्रेस. ओके, अगर होगा तो आज के इसमें ही कवर कर लेंगे, बट उसका नोट्स आपको आ जाएगा. नाउ ये दोनों चीजें. सो कॉन्वर्सेशन फोकस टू मच ऑन इमोशंस. सो अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल, कैसे हैं, सब बढ़िया है, ओके, मालूम है मुझे क्या दर्द हो रहा है, मेरा कमर दर्द, इतना इमोशनल बातें करेंगे, दे गेट वेरी वेरी अपसेट. नेवर टॉक टू मच ऑफ इमोशंस. थर्ड, डीलिंग विथ इम्पल्सिव मूडी पीपल. नाउ एक बात बताइए, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट को देख के बताइए, कौन लोग होंगे फोकस टू मच ऑफ इमोशंस, इम्पल्सिव एंड मूडी पीपल? विच एलिमेंट? Air, Air and fire. water, एयर, water, वाटर और Fire. फायर. तो बचा कौन सा फिर? Ether. हाँ, ईथर भी आएगा, अभी आगे आप देखोगे ईथर भी आएगा. So the whole idea is, since we are learning this as the first element, earth element has its own triggers with the other element for different reasons. So बहुत ज्यादा मूडी हो गए, जैसे ईथर भी मूडी होता है, कभी खुश होता है, कभी दुखी हो जाता है, ऐसा जब होता है तो अर्थ को समझता नहीं, यार व्हाई आर यू नॉट कंसिस्टेंट विथ योर इमोशंस. वाटर अगर मूड स्विंग्स दिखा रहा है तो व्हाई आर यू नॉट कंसिस्टेंट विथ योर इमोशंस. फायर एंड एयर हाईली इंपल्सिव डिसीजन ले रहे हैं, अरे यार प्लानिंग तो कुछ होता है. So Earth has its own reason to get triggered by other elements. उनमें से ये सारी चीजें. Working with unpredictable or disorganized individuals. कौन होगा ये एलिमेंट? air, Air and water, disorganized. Okay? उनके साथ बिल्कुल नहीं काम कर सकते. यानी कि अब जब उनके साथ आप काम कर रहे हो, you be organized. हमने अभी रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया, तो उन्होंने बोला कि एटलीस्ट मेरा ऑफिस का टेबल मैं ठीक रखने लगा हूं, बिकॉज माई बॉस इज एन अर्थ. तो वो मुझे देख के जो चिढ़ता था, अब वो नहीं चिढ़ रहा है, बिकॉज मैं ऑफिस टेबल ठीक रखता हूँ. So that's a benefit we got. Networking or collaborating with too many new people. This you will see with organizations. अलग-अलग, जैसे शबीर being the executive director of BNI, Herbalife में यहाँ पे है. आपके ऑर्गेनाइजेशन में लाइक प्रिया एंड रूपाली, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब आते हैं लोग, if a new earth element has joined your organization, okay, in any of your organization, एंड रादर पूर्वा, अगर आपकी टीम में किसी अर्थ को आप ज्वाइन करवाते हो एज एन एम्प्लॉय, आप देखोगे दे विल बी वेरी स्लो इन मेकिंग फ्रेंड्स. ओके, इफ शबीर हैज ऑब्जर्व अर्थ एलिमेंट, उनका 1-to-1 जो है सबसे लेट स्टार्ट होता है. उनका बिजनेस शेयरिंग, बिजनेस गिविंग, बिजनेस रिसीविंग बहुत लेट स्टार्ट होता होगा. True, absolutely. सो दे विल Yes. ऑलवेज, and they will always, bro, you are a part of networking, na? Yes. So you see, your own networking would have started very slow. Yeah, first मैं तो ऑब्जर्व करूंगी, then वो पूरा डेटा एनालिसिस होगा, पूरा. then things slowly will build up. Yes. So the whole idea is, अगर आपकी टीम में कोई अर्थ ज्वाइन किया है, do not push them to become friendly soon. They will take their own sweet time, because they will scan, they will understand, they will because it's a new thing, so they are trying to adapt the change. So होगा.
बीइंग रिक्वायर्ड टू सोशलाइज बियॉन्ड कंफर्ट, ये एक और उनके लिए ट्रिगर है। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल अर्थ इज मैरिड टू अ वाटर, और वाटर हर वीकेंड को बोलते हैं चलो ना फ्रेंड्स को मिलने जाते हैं या फिर फ्रेंड के साथ पार्टी करते हैं, ये है। सो इट इज एवरी वीकेंड, सो अर्थ के लिए इट इज टू मच, सो दैट ट्रिगर्स। सो कभी कभी ये अर्थ बहुत अपसेट हो जाएगा, अरे क्या हर हफ्ते जाना है, तो दे विल इट विल बी टू मच ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि इतना सोशलाइज कैसे करेंगे। अब देखोगे दे आर द वंस हु विल से ओके आप चले जाओ, मैं घर पर रहता हूँ। मेनी टाइम्स अर्थ विल से आप चले जाओ, दे विल नॉट कम आउट। अनफिनिश्ड वर्क उनको सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन हमेशा छोड़ेगा, उनका खुद का और दूसरे का भी। ओके, आप अधूरा काम छोड़ के जाओ, उनको पसंद नहीं आएगा, उनका खुद का काम अधूरा रहता है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सो इट लीव्स अ सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। पीपल हु डोंट फॉलो थ्रू कमिटमेंट, दिस इज अ वेरी बिग ट्रिगर फॉर देम, वेरी बिग ट्रिगर। इसीलिए हमेशा पुट, मतलब जो भी कमिटमेंट देंगे प्लीज उसको फुलफिल कीजिएगा, बिकॉज वो उनका ट्रस्ट, उनका फाउंडेशन ऑफ दैट रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द कमिटमेंट्स। एंड रिमेंबर, लेफ्ट ब्रेन, दे आर टास्क ओरिएंटेड। Having to constantly adapt to new tools, technology और methods। अभी अभी व्हाट्सएप पे वो अभी कोटेशन लेने के लिए जस्ट स्टार्ट ही हुए थे, अभी बीच में आ गया एआई। ओके, ईमेल ईमेल को अडेप्ट कर लिए थे, अभी व्हाट्सएप को अडेप्ट कर ही रहे थे, नया चीजें आ जाती है। सो इट बिकम्स अ बिट चैलेंजिंग। सो कंटिन्यूअस चेंज जहां पे होगा, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए आर&डी डिपार्टमेंट्स वगैरह में दे आर वेरी गुड विथ फाइनलाइजेशन, डेटा स्टैटिस्टिक बनाने में, बट आर&डी करना है वो नहीं करेंगे, तो उनके लिए वो थोड़ा चैलेंज हो जाता है। लेकिन डेटा लेने में हाउ डीप इट इज, हाउ यूजफुल इट इज, वो डेटा निकालेंगे, बट आस्किंग देम टू वर्क ऑन इट could be a bit challenging. Environment which with too much of noise, chaos और movement, ओके, कोई कहीं पे भी शांत माहौल नहीं है, उनको बिल्कुल नहीं चलता है। दे नीड द साइलेंस। इसलिए बोला था ना, पाताल लोक में एक ऑफिस दे दो, दे आर वेरी हैप्पी। ओके, साइलेंस। दे फील एग्जॉस्टेड, फीलिंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम लॉन्ग टर्म प्लानिंग और डिस्कशन। एज एन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सन, ओके, आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, इफ देर इज एन अर्थ एलिमेंट इन योर टीम और आप कुछ एक डीप डिस्कशन कर रहे हो और उसका कैपेसिटी है उस मीटिंग में, या फिर उसका उसका पोजीशन है उस मीटिंग में रहने का, प्लीज इन्वॉल्व देम। एनीथिंग विच रिक्वायर्स प्लानिंग, प्लीज इन्वॉल्व देम, वरना उनको एक्सक्लूड फील होता है, तो दे गेट वेरी अपसेट। दे मे नॉट से एनीथिंग बट दे फील वेरी अपसेट। लैक ऑफ एप्रिसिएशन फॉर देयर एफर्ट्स, ओके, वो बहुत जरूरी है उनको, कि देखो मैंने कितना अच्छा एक्सेल शीट बनाया, मैंने I have created 5 different templates so that the sales people can report to us very easily. We don't have to keep on asking. They will update and we'll see in the MIS. ऐसा, so वो चीजें उनको appreciate चाहिए। Being rushed to make quick decisions without enough data, across the table decision लेने बोल रहे हैं, it is very very tough. Frequent changes in leadership, policies or roles. I know a person, वो एक महीने कंपनी में काम किया और उसने छोड़ दिया। मैंने उसको पूछा कि अरे एक ही महीना हुआ था, तू छोड़ा क्यों? अरे मुझे अपॉइंटमेंट लेटर और जॉब प्रोफाइल ही नहीं दिया था, एक महीना हो गया। जस्ट बिकॉज उसको जॉब प्रोफाइल नहीं दिया, ही लेफ्ट। सो प्रिया, एज अ एचआर, अर्थ आया, उसको फर्स्ट डे या सेकंड डे उसको जॉब प्रोफाइल दे दो हाथ में, उनको पहले दे दो, हाँ, उनको पहले दे दो, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ओके, आई नो व्हाट टू बी डन, आई नो दीज आर द टास्क, दीज आर द रिपोर्टिंग मैनेजर्स, दीज आर माय रिपोर्टिंग, वेरी, ओके, डे 1 डे 2 दे देने का, खत्म करो। ओके, बिकॉज वो पॉलिसीज, प्लस उनको क्या करना, एसओपीज, पॉलिसी, ओके, सारे उनको फाइल दे देना, पूरा चैप्टर बहुत पसंद आता है। दे लव द डेटा, बिकॉज द मोर इन्फॉर्मेशन, मोर दे नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, द मोर लॉयल दे बिकम। ओके, सो ऑलवेज डू दैट। Sudden financial instability or unexpected expenses, they get triggered, because sudden, anything surprising, a challenge. Feeling stuck in wrong role or environment, job related है, work organization related, work related है। feeling stuck in a wrong role or environment, एक अर्थ के लिए wrong role क्या होगा?
I guess people interaction. पीपल इंटरेक्शन, लाइक पीआर का जॉब हो गया, हाँ, मार्केटिंग। रिसेप्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, call मार्केटिंग center, सेल्स हो गया, HR, in talent acquisitions. टैलेंट एक्विजिशन. ओके, these are not the good roles जहाँ पे आपने अर्थ को Correct. रखनी चाहिए, बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पीपल इंटरेक्शन, लॉट ऑफ सोशलाइजिंग नहीं होगा. ब्रांडिंग फॉर एग्जाम्पल, Hmm. या फिर पेज 3 रिपोर्टर. Even creative works. हाँ, एनी क्रिएटिव Yeah. वर्क, एनी क्रिएटिव, एडवर्टाइजिंग, जिंगल राइटिंग, वो सब, पेज 3 रिपोर्टर, ये सारे, दिस दिस नीड्स देम कंटिन्यूअसली वर्किंग, मूवमेंट, कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन, सोशलाइजिंग, सब कुछ नहीं होगा. So these are the triggers of Earth. Purva, it matches with you? Sorry, what? These pointers, these triggers match with you? Yeah, all of them. All of them? Yeah. Perfect, great. So now the whole idea, हमारा रोल क्या होता है, who are not Earth, ये सारी चीजें उनके साथ मत करो. Now जो आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे, अगर ये हो रहा है तो अर्थ ने क्या करना चाहिए वो हम देखेंगे थोड़ी देर में. Okay, now the fire. फायर अगर अपसेट है, ट्रिगर्ड है या स्ट्रेस्ड है, हमको कैसे पता चलेगा? वो दिखा देगा। हाँ, वो दिखा देगा कि वो वो अपसेट है दिखाएगा, करके। राइट? दिख जाएगा, बिहेवियर में दिख जाएगा. बिहेवियर He में or दिखेगा, she will make noise about it. दे विल मेक नॉइज. करेक्ट. वहीं पे अर्थ अगर अपसेट है, स्ट्रेस्ड है, तो कैसे पता चलेगा? वो With विड्रॉ the कर लेगा खुद responses. को। वो साइलेंट जोन. वो साइलेंट जोन है. हाँ. तो अर्थ जो है वो चिल्लाना पसंद नहीं करता है, बट फायर चिल्ला के दिखा सकता है. ओके, और इसके लिए सबसे बड़ा जो ट्रिगर है, जहां से उसका मेन ट्रिगर, मेन दुखती नस जो है, लूजिंग कंट्रोल ओवर लाइफ गोल्स और डिसीजंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर उसको जरा से भी मैंने आपको वर्कशॉप में बोला था ना कि फायर जो है बार बार आपको मांगे, डेटा भेजो, कितना हो गया, क्या हो गया, और जैसे डेटा मांगेगा, द ओनली रीजन ही वांट्स टू और शी वांट्स टू नो इज एंड जो है, टारगेट जो अचीव्ड है वो हमारे टारगेट जो प्लान है उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है. सो दैट दिस फायर नोज दैट मेरा कंट्रोल ओवर दैट गोल, दैट प्रोजेक्ट छूट नहीं रहा है. So control is very, very important for this fire. Control. Second, situation where they are forced to compromise their goals. Big trigger. पर मैं कैसे पीछे हट सकता हूं, मेरा मेरा मकसद कैसे पूरा नहीं होगा, ऐसा. तो big trigger. There another trigger is being in an environment that is slow to change. यानी कि the fire is surrounded by which element? एयर। Slow to change. हाँ, अर्थ। अर्थ. सो अगर फायर के इर्द गिर्द में बहुत ज्यादा अर्थ आ गए हैं और अर्थ सारे इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी स्लो टू इंप्लीमेंट और चेंज, इमीडिएट ट्रिगर. अगर somebody स्लो टू ऑपरेट और स्लो टू इंप्लीमेंट, तो फायर की नजर में क्या हो जाएगा वो? टाइम वेस्ट। इनकॉम्पिटेंट, डायरेक्ट. ओके, लायक नहीं है काम करने के लिए. सो उनके लिए वो है. नाउ लॉस ऑफ इमेज, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी और फेसिंग डिमोशन, इनमें से कुछ भी हुआ तो उनको तकलीफ होता है. ये उनके लिए ट्रिगर क्यों है, लॉस ऑफ इमेज, पावर? Because they always want to be number one, no? एग्जैक्टली, बिकॉज दे वांट टू बी ऑन टॉप. और नीचे गए बिकॉज दे आर वेरी इमेज कॉन्शियस. रुतबा बहुत मायने रखता है, रुतबा उनका खराब होता है ना. वही हमने सलमान खान के इसमें देखा था. अरे 7 करोड़ बोला था, 4.5 करोड़ पे साइन अप कर लिया. अरे ये मेरा वैल्यू, मेरा प्राइसिंग क्यों बता रहे हैं मार्केट में, पूरा खुलेआम क्यों बता रहा है? तो उसका उसका इमेज पे नुकसान आ रहा है ना. बुला के उसका बेइज्जती करने के लिए बुलाया, ऐसा. तो दैट्स अ ट्रिगर फॉर देम. स्ट्रॉन्ग एवर्जन टू फेलियर और सेटबैक्स. फेलियर हैंडल ये बिल्कुल नहीं कर सकते. मैं फेल कैसे हो सकता हूं, दैट इज देयर क्वेश्चन.
ओके, और ये अब देखोगे ये बच्चों में भी दिखाई देगा। चिल्ड्रन हु आर फायर, उनका रैंक एक रैंक से भी नीचे गिरता है, दे आर अपसेट, दे विल कीप ऑन क्राइंग। वर्किंग विथ इनकॉम्पिटेंट और अनमोटिवेटेड पीपल, इनको समझता नहीं है मैं 12-14 घंटा काम कर सकता हूं, तुम लोग क्यों नहीं करते। इनका सबसे बड़ा वो चीज है, तुम स्लो काम कर रहे हो, इनकॉम्पिटेंट हो जाते हो इनकी नजर में। तुम स्लो डिसीजन लेते हो, इनकॉम्पिटेंट हो जाते हो इनकी नजर में। तुम थोड़ा इमोशनल हो जाते हो, यू बिकम इनकॉम्पिटेंट इन फ्रंट ऑफ दिस पीपल। यू आर नॉट डिलीवरिंग देयर काइंड ऑफ रिजल्ट, यू आर इनकॉम्पिटेंट। ऐसा वेरी वेरी, और उनके लिए वही है कि भाई यू शुड कंप्लीट माई वर्क। इसीलिए दे बिकम वर्कोहलिक, and their one of the trigger is being forced to idleness and doing nothing. For example, long vacation. Now this is a big irony for fire. Fires can afford the best of vacation, but somehow they don't enjoy it. Okay. Rupa, you want to share? Did you ask me? नहीं, रूपा। हाँ. Sorry, Prantika, I was on a call. हाँ, ये doing nothing in the vacation बात करना है। ये यूजुअली होता नहीं है, मतलब पहले विद प्रांतिक एंड ऑल्सो विद माय ब्रदर आई हैव सीन दिस दैट दे से दैट दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन. सो फर्स्ट टाइम द फर्स्ट ईयर working with Prantik was like he said that I am on a vacation for 3 days and I was like wow, वेकेशन है मतलब हमें भी आराम मिलेगा करके. एक दिन चला गया, ही सेड आई एम गोना रीड बुक्स एंड बहुत कुछ चीज़ें, आई एम गोना टेक अ पॉज, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स बोले थे प्रांतिक ने. एंड देन आई वाज लाइक वाओ ग्रेट, 3 दिन हमको भी छुट्टी आराम में. आई टोल्ड द अदर असिस्टेंट ऑल्सो कि चलो अभी आराम करेंगे, विल नॉट डू एनीथिंग. एंड ही डिड नॉट से एनीथिंग, आई वाज क्वाइट सरप्राइज व्हाई ही डिड नॉट से दैट, say anything. Then first day went. First day he has sent some photographs कि I'm reading this book, that book. I was like wow cool. Second day से ये ईमेल अभी तक क्यों नहीं गया है, इसका पैसा क्यों नहीं आया है, ये इनवॉइस क्यों नहीं बना, इतने सारे क्वेश्चंस आ गए. एंड आई वाज लाइक अरे वेकेशन है क्या कर रहे हैं करके. बट देन आई रियलाइज कि नहीं, दे वांट everything in control, they want everything to be reported, and this is what my brother also does it. One day he'll take it, and maybe not even one day, in fact the same night he has called up the manager. तो मैं आई जस्ट टोल्ड भाभी भाभी वेकेशन है तो क्यों नहीं एंजॉय करता है. नहीं नहीं, मैनेजर को कोई छुट्टी नहीं रहता है, उसको वो अपडेट चाहिए मतलब चाहिए, रिपोर्ट्स चाहिए मतलब चाहिए, उसको देखना है करके. एंड ट्रस्ट मी आफ्टर दैट वेकेशन whenever Prantik says कि I'm going for a vacation, I'm like okay, जो काम दिया है ना I send him beforehand, before he asks I send him. So that is always there with every fire. Every fire they require, they need to be in control of it. And vacation रहेगा तो और ज्यादा हो जाता है somehow I feel, क्योंकि और कुछ करने को रहता नहीं है उनको. थोड़ी देर बीच में बैठ जाएंगे, लेकिन बहुत देर तक मैं आई कैन सिट फॉर 8 hours ऑल्सो, आई विल बी एंजॉयड. बट देन फॉर फायर आई डोंट थिंक सो. दैट्स द आइडिया ऑफ अ वेकेशन. So anything ideal is loss. And I interviewed few of the fire people कि बोले कि ये सब मेरे साथ है क्या, बिकॉज माई सेकेंड एलिमेंट इज फायर, तो ये मेरे साथ होता है क्या. मैं देखा उनके साथ भी हो रहा है. रूपा से बात से किया तो उनके भैया भी ऐसे करते हैं. आई वेंट एंड इंटरव्यूड, बोले कि ऐसा क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन योर ब्रेन which is not allowing you to sit idle. One of the fire said guilt. एक गिल्ट आता है कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई वर्क वेरी हार्ड टू रीच टू दिस लेवल, and if I'm not working hard, I am feeling that I'm losing out something. Okay, so why I'm sharing this aspect is there's another aspect of their behavior, आपको वो भी समझना है. So there वो subconsciously उनका कुछ एक पैटर्न है जिस वजह से they are forced to work this way or behave this way. तो ये सारी चीज आपको समझना है. Being micromanaged or questioned about their decisions. This is a big irony and paradox. They like to micromanage, they don't like to be micromanaged. Okay, कोई उनको पूछे ये कितना हो गया, ये क्या हो गया, अरे बता दूंगा ना शाम तक, इतना क्यों पीछे पड़ा है. बट वो खुद पीछे पड़ के माइक्रो मैनेजिंग करेंगे. They love to do that. Why? Control. Remember the first part. Repetitive discussion without clear action or progress is big time waster for them. जाते ही नहीं है.
एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम कर रहे थे। अभी आफ्टर द सेकेंड और थर्ड मीटिंग आई हैव स्टॉप्ड इन्वॉल्विंग माई सेल्फ इन देयर मीटिंग्स। रूपा इन्वॉल्व हो जाती है, रूपा डिस्कशन का पार्ट होती है एंड शी गिव्स मी द मैसेज। तो क्योंकि दे आर जस्ट डिस्कसिंग एंड दे आर नॉट टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स इट, दे आर जस्ट डिस्कसिंग, दे आर कंप्लेनिंग, ये हो रहा है वो हो रहा है। सो आई स्टॉप बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन, क्योंकि एज अ फायर जब मैं सोच रहा हूँ इट इज कंप्लीट टाइम वेस्ट फॉर मी। मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन से मतलब है, बाद में हम एक्शन प्लान बना देंगे उनके लिए। तो ऐसा, सो आई स्टॉप बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट। सो अननेसेसरी डिस्कशन नहीं, एक्शन तुरंत। टीम मेंबर्स हु लैक ड्राइव और सेंस ऑफ अर्जेंसी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दे ड्राइव पीपल क्रेजीली, ऐसा, बिकॉज दे देमसेल्फ आर वेरी ड्रिवन। बीइंग कंपेयर्ड अनफेवरेबली टू समवन एल्स, कंपैरिजन हुआ तो दे गेट ट्रिगर्ड कि अरे वो देखो वो ऐसा कर रहा है, तुम नहीं कर रहे। अरे लेकिन उसके पास वो क्वालिटी है क्या जो अभी मेरे पास है? सो दैट्स द काउंटर क्वेश्चन वी हैव। सो नेवर कंपेयर देम टू एनीबॉडी, दे फील एक्सट्रीमली ट्रिगर्ड, एक्सट्रीमली ट्रिगर्ड। सीइंग अदर्स टेक क्रेडिट ऑफ देयर आइडियाज, अगर ये खासकर जूनियर पोजीशन पे अगर है तो वो शायद वो वोकल आउट नहीं कर पाएंगे, बट दे गेट ट्रिगर्ड, एंड जब मौका मिलता है दे विल से दैट 100%। लैक ऑफ रिकॉग्निशन फॉर देयर हार्ड वर्क और अचीवमेंट, अब देखो वहां पे क्या था, लैक ऑफ एप्रिसिएशन फॉर देयर एफर्ट्स, यहाँ पे लैक ऑफ रिकॉग्निशन फॉर द हार्ड वर्क और अचीवमेंट, यानी कि हमने अचीव किया, हमने टारगेट पूरा किया है, इसको क्यों नहीं अप्रिशिएट हो रहा है? सो दैट्स ट्रिगर, टू डिफरेंट। आप देख सकते हो लैक ऑफ एप्रिसिएशन कैसा है। जी प्रिया। हाँ, आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस। या रिकॉग्निशन मेरे को नहीं मिलेगी ना, तो मैं मैनेजर को रिव्यू में लिखती हूँ कि तू मेरे को रिकॉग्निशन क्यों नहीं दे रहा है। they That's like how to it be in is. the limelight, they like to be in the limelight. And I was relating with the earth element. He is a silent kind of an person. No, he will say that weekend पे नहीं जाएंगे मॉल्स में, कोई ऐसे डे पे जाएंगे या फिर ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे बहुत शांति हो। हाँ। तो पहले हम लोग जब गए थे ना, उसने ऐसे बीच ढूंढ के निकाले थे जहाँ पे भी हार्डली 2 या 3 या प्राइवेट बीचेस हो, लेकिन मेरा ऐसा, अरे बंदे तो दिखने चाहिए ना यार, कुछ नहीं दिख रहा। दैट्स हाउ इट इज। एंड रिगार्डिंग रिकॉग्निशन, यस, रिगार्डिंग कंपैरिजन आई आल्सो गेट वेरी पिस्ड ऑफ। कंपैरिजन हो गया या मेरे को कोई कॉपी कर रहा है, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन व्हेन यू आस्क्ड अस टू राइट अ नोट्स, आई हैव रिटन दैट टू। यस। See? So it matches. So all, अगर आप देखोगे, every element has its own trigger, but the trigger scenarios are very different. Earth and fire, both of them are left brain, both of them are task oriented, but वो किस चीज को देख रहे हैं? सडन चेंज, वहां पे वो ट्रिगर हो जाता है, यहाँ पे लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ गोल्स एंड लाइफ। तो दैट इज, सो ट्रिगर रीजंस बहुत अलग अलग होंगे। उसी हिसाब से लेट्स गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट, द वाटर। वाटर भी हमारा अपसेट होता है। वाटर अपसेट होगा तो कैसे होगा, कैसे पता चलेगा हमको? वो इमोशनल हो जाएगा। इमोशनल हो जाएगा, वो चुप हो जाएगा, वो ज्यादा बात नहीं करेगा, सब कुछ। सो एनी काइंड ऑफ डिसहार्मनी और इमोशनल टेंशन एट होम, दे गेट वेरी अपसेट, दे गेट स्ट्रेस्ड, दे गेट अपसेट, दोनों। उनको स्ट्रेस इसलिए है कि अरे इतनी सी बात को यार बात करके खत्म करो, ओके सुलझा दो, ऐसा स्ट्रेस में मत रहो, ऐसा सब। सो दे फील दैट पेन। लॉस ऑफ लव्ड वन, ये उनके लिए बिग 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 है, बिग चैलेंज है, लॉस ऑफ लव्ड वन। ये और एक रुको, मजाक में भी, एक वार्निंग साइन जैसे मैं बोलूंगा, मजाक में भी कभी भी आप किसी भी वाटर को ये मत बोलो क्या है मेरा, क्या है, मैं आज हूं कल मर जाऊंगा, मजाक में भी मत बोलो। दे गेट वेरी अपसेट, वेरी वेरी अपसेट, क्योंकि सिर्फ अभी एक नया घर बदल रहे हैं, पड़ोसी बदल गया, पड़ोसी जा रहा है तो उनको दुख होता है, उनका एम्प्लॉय कोई छोड़ के जाता है तो दुख होता है, और यहाँ पे कोई ऐसा चला गया जिसको हम दोबारा मिल ही नहीं पाएंगे। अरे इट्स बिग पेन फॉर क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली लीविंग, बच्चे अगर छोड़ के जा रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, इट्स अ बिग ट्रिगर फॉर देम। सो रूपा, तुम्हारा स्टोरी यहाँ पे बहुत अच्छा मैच करता है।
सो यस 12th ग्रेड में मतलब अब हमारा ये डिसीजन था कि हम लोग नहीं अप्लाई करेंगे करके। एक टाइम ऐसा भी था कि हमने डिसाइड कर लिया था कि नहीं करेंगे, बट ऑल ऑफ अ सडन बाप बेटों ने डिसाइड कर लिया कि नहीं, वी विल अप्लाई फॉर द यूएस यूनिवर्सिटीज। एंड करने के बाद मतलब ऑलमोस्ट 9 मंथ्स ही बचे थे उसका कंप्लीट होने के लिए। एंड देन दे इन्फॉर्म मी कि यस वी आर अप्लाइंग करके। एंड आई वाज लाइक, ये क्या हो गया करके? डिसीजन तो था कि नहीं करना है करके, और ये क्यों कर रहे हैं करके। देन ही ऐसे, ठीक है अभी करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं तो इट्स फाइन। देन आई टोल्ड प्रांतिक कि प्रांतिक, मैं भी सबैटिकल ले रही हूँ, आई एम टेकिंग अ ब्रेक 9 मंथ्स। मैं बिल्कुल भी 9 मंथ से भी ज्यादा शायद मुझे टाइम लग जाएगा, बट देन आई वांट टू बी विथ माय सन बिकॉज ही विल बी लीविंग। देन उसको बहुत सारी चीजें सिखानी। ये तो दाल चावल भी आज मैं मिक्स करके देती तो ये स्पून से खाता है, तो मैं कैसे करेगा ही करके। बहुत सारा इतना स्ट्रेस हो गया था मुझे, और मैंने बोला कि नहीं, मैं फोकस नहीं कर पाऊंगी, आई वॉन्ट टू बी विद द फैमिली। सो दैट वॉज वेरी वेरी अपसेटिंग फॉर मी। मतलब मेरा चेहरा दिख गया था, नो स्माइल नथिंग। और मुझे स्ट्रेस हो गया था कि कैसे करेंगे करके। एंड इनफैक्ट मेरा ये भी प्लान था कि अगर ये प्लान कर रहा है सही में जाने का, तो मैं इसको छोड़ के सेटल करके फिर आऊंगी करके, वहां पे पूरा अरेंज करके आ जाऊंगी। इतना सब दिमाग में था। सो आई टोल्ड प्रांतिक दैट मे बी मोर देन 9 मंथ्स आई एम गोना टेक इट। बट यस, वो इधर फेज में चला गया। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आई डोंट नो वेदर आई शुड से वो फॉर्चुनेट था या अनफॉर्चुनेट था, लेकिन इट वाज गुड कि वो इधर फेज में चला गया था। तो प्रांति क्या? हाँ। हाँ, तो नाउ यू कैन सी द वाटर मदर, हाउ हाउ डज शी फील। इतना नहीं, ये रूपा है करके नहीं है, मेरी एक बड़ी माँ है, उड़ीसा में रहते हैं, उनके 2 बेटे हैं, आलोक आशीष। वो वहां से निकल गए। अच्छा, माय माय फादर एंड मदर, 2 ब्रदर्स मैरिड टू 2 सिस्टर्स, ऐसा वाला स्टोरी है। सो एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर के 2 बेटे, जो मेरे बड़े बाबा बड़े माँ आलोक आशीष, वो निकल के नासिक आए हैं चाचा चाची के यहाँ पे। ओके, तो बाबा चाचा बनते हैं, माँ चाची बनती है, घर पे है, फैमिली के ही घर पे है। बट वो बड़ी माँ रोज रोना, रोज फोन करना, 45 मिनट्स एसटीडी पे बात करना, ये सब चल। क्यों? मेरे 2 अनमोल रतन घर से निकल गए। सो अपसेटिंग। ओके, सो दे feel a lot. Lack of open communication in any relationship, whether it is office or at home. ओपन कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ना, उनको उनको बातें दबाने पड़ रहा है, उनको बातें छुपानी पड़ रही है, तो दे फील चोक, दे फील चोक। बॉस और कॉलीग भी बात नहीं कर रहे हैं, दे फील चोक्ड, अनहर्ड, इग्नोर्ड, और इफ दे फील इनविजिबल इन रिलेशनशिप, इट्स अ बिग 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 ट्रिगर फॉर देम। उनका उनका वजूद या अस्तित्व दिख नहीं रहा है, प्यार नहीं दिख रहा है, सो दे फील दैट। कोल्ड, डिटैच्ड और ओवरली लॉजिकल पीपल इज अ ट्रिगर फॉर देम। सिर्फ लॉजिकल पीपल भी नहीं, आई विल ऑल्सो शेयर। हम एक ऑर्गेनाइजेशन में, तलेगांव के एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, हम वहाँ पे वर्कशॉप कर रहे थे। सो उनके शॉप फ्लोर के उधर एक स्पेस था जहाँ पे ट्रेनिंग होता था, हम वहाँ पे ट्रेन कर रहे थे। तो रूपा और सब, हम सब जैसे आपने रूम देखा था वैसे सारा पोस्टर वोस्टर सब लगा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद आती है, प्रांतिक, आई एम फीलिंग सफोकेटेड। बोले क्यों? कुछ ज्यादा ही ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस है ये, मतलब टू मच ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस भी, शी फेल्ट चोक्ड। तो एंड देवर लॉजिकल, नो प्लान्स, नो हाँ, फील गुड फैक्टर, कुछ अच्छा लिखा भी नहीं है कहाँ पे भी, कहीं कुछ नहीं था। द ओनली टाइम आई फेल्ट गुड वॉज आफ्टर स्टेपिंग आउट, एंड उनका एक लंच एरिया था वहां पे, कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ ऐसा ग्रीनरी एंड प्लांट्स थे, तो वहां जाके हाँ व्हाट अ रिलीफ कर, लिटरली मैंने वो डायरेक्टर के सामने कर दिया, हाँ व्हाट अ रिलीफ ऐसे करके बोला। एंड देन आई रियलाइज ओ माय गॉड, मैंने डायरेक्टर के सामने किया है करके। बट देन यस, दे अंडरस्टूड व्हाई आई डिड दैट। सो ये तो ऐसी जगह है। चैट में क्या है? ग्रेट। तो चैट, ये तो एनवायरनमेंट हुआ। सिर्फ लॉजिकल बातें भी करोगे ना तो भी आप देखो वो ट्रिगर हो जाते हैं, सो दे गेट वेरी अपसेट। आर्ग्यूमेंट और हार्श वर्ड डिस्टर्ब्स देयर इमोशनल पीस, एंड लाउड वॉइस भी इमोशनल पीस हार्म करता है। सो प्रेफरेबली अवॉइड दीज थिंग्स विद देम। रैपिड ट्रांजिशन विदाउट इमोशनल क्लोजर, ये बहुत ही बड़ा चीज है जो एक एक वाटर के लिए होता है।
एंड दे कैरीड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. अगर अगर मान लेते हैं कि एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस चले गए, मतलब वन ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन शिफ्ट हुए, एंड दैट पर्सन वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑफिस टू अदर ऑफिस. ट्रांसफर हुआ है, बट यहाँ पे ठीक से सबको हाई बाई वगैरह नहीं किया है. आज बोल दिया और उनको परसों ही उधर रिपोर्ट करने बोल दिया है. दिस वाटर डिड नॉट गेट अ चांस टू से बाय टू एवरीबडी, या फिर एक काइंड ऑफ इमोशनल क्लोजर नहीं था, या फिर किसी रिलेशनशिप में all of a sudden break हो गया and there was no closure for that relationship. So it becomes upset and they carry it for a very long time. Being left out of meaningful conversation or decisions. Earth में हमने क्या देखा था? Being left out in long term planning discussions. और यहाँ पे meaningful conversation से अगर बाहर है, they feel upset. People breaking emotional trust or withholding affection. प्यार है लेकिन जता नहीं रहे हैं. Okay, emotional trust बार बार तोड़ रहे हैं. Very upset. ये एक जब भी आप किसी वॉटर से बात करो, एश्योरेंस देना बहुत जरूरी है दैट आई एम देयर फॉर यू. ओके, आई लव यू लॉट, आई एम देयर फॉर यू, नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू. ये एश्योरेंस उनको फील होना बहुत जरूरी है. जरूरी नहीं कि आप ये हमेशा वर्बली बोलो, बट उनको फील होना जरूरी है कि कुछ भी हो जाए ये नहीं छोड़ के जाएगा, ये हमेशा मेरे साथ है. तो फीलिंग देना बहुत जरूरी है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बीइंग इन एन एनवायरनमेंट विद कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट. हर बार सिर्फ टारगेट, हर बार सिर्फ नंबर्स पे अगर बात कर रहे हैं, दे गेट अपसेट. बट वही टारगेट के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं वाटर के साथ कि यू नो व्हाट, once we achieve this final number and the kind of bonuses that we get, the recognition that we get, and all the people will be called, their families will be called, and in front of their families they will be given award. That will be such a lovely occasion to celebrate. वही कंपटीशन को इस लैंग्वेज में जब बात करते हैं, दे फील इंस्पायर्ड. बट अगर सिर्फ नंबर करो, ये करो, इतना हमको टारगेट चाहिए, दे कांट रिलेट विद दैट. वेदांत, तुम्हारा वाटर. Yes, 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 sir. 100% agreeing to that. So, can I share two things? प्लीज. Yes, first of all, my upline sponsor is a fire a lot of time. तो मेरा दिमाग फिर घूम जाता है बहुत बार कि देन आई स्टार्ट अवॉइडिंग हिम, देन वो शांत हो जाते हैं. बट वो होता है क्योंकि वो फायर है, वो टारगेट ये कर, इतना करना, ऐसा करना. मेरे को नहीं करने का, मेरे को एंजॉय करने दो मेरा बिजनेस. एंड सेकेंड, जैसे रूपा मैम का हुआ था ना, वैसा मेरे घर के सामने जिम है. इट इज द बेस्ट जिम विद बेस्ट इक्विपमेंट्स. मतलब जो जो मुझे पसंद है वो सारे इक्विपमेंट्स वहां पे. बट वहां पे सारी चीजें से शांत है, लोग बहुत कम बोलते हैं, कुछ ऐसा ये नहीं. वहां का मेंबरशिप भी कंपेयर टू दूसरा पहले जिम जा रहा था उससे कम है. मगर वो दूसरे जिम में ना जगह है, लोग ऐसे मिलते थे, मेरे दोस्त वगैरह बने थे. तो मुझे अभी ऐसा हो गया कि नहीं, इधर नहीं जाने का, मुझे वो दूर वाले जिम में जाने का, क्योंकि उधर मजा आता था. सो ये होता है. एंड कंपेयर टू दैट, मतलब ये जो सामने वाला जिम है ना, पास भी है एंड टॉप नॉच क्वालिटी है, मगर वहां पे लोग बात नहीं कर रहे, तो मुझे एकदम ऐसा सफोकेटेड होता है वहां पे. सो 100% तो वैसा होता है. तो दैट्स इट. देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिम भी वो चूज करे जहाँ पे लोग ज्यादा बात करते हैं. ओके, लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज अ बिग चैलेंज फॉर अ वाटर. लैक ऑफ कम्युनिकेशन. Yes, Rupa, as a water, some sharing from you. Everything, whatever you have written, everything matches very well. So मेरे लिए तो कोई चिल्ला के भी बात करेगा तो भी आई कांट टेक इट. चिल्ला चिल्ला के, और कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट रहेगा तो. Now the air चिड़ा हुआ है. कैसे, क्यों चिढ़ता है, जरा देखते हैं. पहला चीज, working in an environment where output is measured only in quantity and not in quality. सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहा है और ये बॉटल बढ़िया से मैन्युफैक्चर होके आ गया. अब एज अ प्रोडक्शन मैनेजर ने देखा, अरे वाह, कितना बढ़िया डिजाइन में बॉटल बन गया है, फाइनल प्रोडक्ट बहुत सुंदर दिख रहा है, बढ़िया. सो प्रोडक्शन मैनेजर, तुमने बहुत अच्छा काम किया. पीछे एयर बैठा है, बोला कि अरे डिजाइन तो मैंने किया है ना, डिजाइन तो मैंने किया ना, कैसे आएगा, कैसे दिखेगा, वो तो मैंने डिजाइन किया, उसको क्यों नहीं अप्रिशिएट कर रहे हो. सो वो चीज हो जाता है कि देयर इनपुट इज नॉट appreciated, the output is only appreciated, तो वो they get upset.
दे गेट वेरी अपसेट जहां पे लैक ऑफ एक्साइटमेंट या क्रिएटिव स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है। देखिए, आज एक मीटिंग में गया था, सो आई वॉज इन्वाइटेड देयर, तो आई वेंट देयर एंड पूरा मीटिंग सब कुछ हो गया, देख लिया। मुझे जो प्रेजेंटेशन देना था मैंने वो भी दे दिया। फिर एंड में सबका सारे लोग जाने के बाद जो कोर कमिटी था जो जिसने ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने बोला कि आपको मीटिंग कैसा लगा सर? दे वर एक्सपेक्टिंग एकदम गुड एनर्जी है सर, क्योंकि डू रियली वांट मी टू बी ऑनेस्ट एंड बी से द ब्रूटल ट्रुथ? भैया, आई फेल्ट नो एनर्जी। ओके, आपने इतना, मतलब गुड मॉर्निंग भी आपका एनर्जी नहीं था। आप जो सबको एड्रेस भी कर रहे थे इतना सीरियस, ऐसे कि नहीं सर हम थोड़ा सा सीरियसली मीटिंग कर, सीरियसली मीटिंग कंडक्ट करो बट सीरियस होके तो मत करो ना। देयर वाज नॉट अ स्माइल ऑन योर फेस। तुम गुड मॉर्निंग बोले, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। ओके, बाकी सब जो ताली भी बजा रहे हैं, ऐसा बजा रहे, अरे कैसे तुम हो? आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा मतलब आपने पूछा और मैं मुझे परमिशन दिया आपने ब्लंट बोलने के, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बट आई फेल्ट वेरी लो एनर्जी। उनके लिए सीरियस मतलब स्माइल नहीं करना, हमारे लिए है कि सीरियसली करो बट सीरियस होके मत करो। एक्साइटमेंट नहीं था, सो दैट वाज वेरी 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 अपसेटिंग फॉर मी। बोर्डम ड्यू टू नो चैलेंजेस और वैरायटी। सो वेदांत, तेरा आंसर है इसमें। उनका कंसिस्टेंसी इसीलिए नहीं होगा क्योंकि बोर होके छोड़ते हैं। अच्छा, नाउ लेट मी आस्क यू, पता नहीं मैंने मेन वर्कशॉप में पूछा था कि नहीं पूछा था, वेदांत एंड रादर एनीबडी, ओके, सपोज यू गिव अ टारगेट, एयर एलिमेंट, तू 50 दिन एक्सरसाइज कर, 50 दिन के एंड में हम तेरे को ये अवार्ड देंगे, ये एयर को काम करेगा क्या? नहीं, No. नहीं, नहीं, क्यों नहीं? बहुत लंबा टारगेट है उसके लिए यस, पहले तो, और 50 50 days. दिन बहुत लंबे हो जा रहे हैं उसके लिए, परफेक्ट। तो उसके वजह से। हाँ, पूर्वा जी आप क्या बोल रहे थे? No, no, I was saying the same कि 50 days is too much और इतने लंबे टारगेट ये लोग लेते नहीं हैं. They एब्सोल्युटली। like to work on short time और span targets. चलो अभी 50 डेज निकाल के हम इसको 7 डेज करते हैं, यस, विल इट वर्क? या इट कैन, मे और मे नॉट? इट मे वर्क। मे और मैं बोल रहा हूँ द आंसर इज मे और हाँ, मे और मिड, ओके, राइट। रीजन क्या है मैं बताता हूँ। पहला चीज, वी आर नॉट, दिस इज लाइक अ ब्राइब फॉर अस। ब्राइबिंग एयर के साथ कोशिश मत करना, नहीं काम करता। ओके, जनवरी ये 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तू रोज आ एक्सरसाइज कर तो हो जाए। अरे अगर दूसरे दिन में बोर हो गया तो? मैं हम वो प्रोसेस वाले लोग, प्रोसेस में हमको मजा आता है। वी एंजॉय द प्रोसेस, वी आर नॉट वरीड अबाउट द डेस्टिनेशन एंड वाला। वो प्रोसेस में ही अगर हम बोर हो गए तो हम तीसरे दिन छोड़ेंगे, तो हम एंड टारगेट सवाल ही नहीं पैदा होता फिर। सो दैट रेयरली वर्क्स विथ फायर, विथ एन एयर। ओके, रूटीन, मोनोटोनस एंड प्रेडिक्टेबल वर्क एनवायरमेंट्स आर वेरी बोरिंग, बिल्कुल नहीं काम करेगा। Constant rejection of new ideas, this is a big trigger. They bring out, they're excited for ideas. एयर के लिए सबसे बेस्ट आइडिया कौन सा होता है? एयर के लिए सबसे बेस्ट आइडिया कौन सा होता है? मतलब कोई भी आइडिया। अभी अभी जो शेयर कर रहा हूं, Fresh ideas. यस, फ्रेश आइडिया, अभी जो आया आइडिया, जो अभी शेयर कर रहा हूं, ये बेस्ट आइडिया है। नाउ व्हाट Correct. इज, हम वो एक्साइटमेंट में शेयर करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर एयर एलिमेंट, हमारी ग्राउंडिंग नहीं है, वी डोंट, हमारा बेस नहीं, अर्थ नहीं है। सो हम शेयर कर रहे आइडिया एकदम। और गैब एक उर्दू वर्ड है, गैब यानी कि आसमान। ओके, समवेयर स्पेस। ओके, तो गालिब साहब ने बोला है, आते हैं गैब से मज़ामिन ख्याल में। इसका मतलब ये है कि वो स्पेस से, वो ईथर से मज़ामिन यानी कि आइडियाज या वर्सेस, थॉट्स, पोएट्री आते हैं ख्याल में। आ जाता है, हमारा ग्राउंडिंग नहीं है, वी हैव नो बेस टू इट। और वो आइडिया शेयर करते ही नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा। इतना जितने बार झटकोगे इतना अपसेटिंग हो जाता है वो। अरे सुन लो ना पहले,
बाद में हम खुद भी कभी कभी विचार करेंगे, देखेंगे और पता चलेगा नहीं काम करेगा, हम छोड़ ही देंगे। बट सुन लो, बट इफ इट इज कंटिन्यूसली रिजेक्टेड, बीइंग फोर्स्ड टू वर्क इन रिजिड अर्थ लाइक स्ट्रक्चर, इनको नहीं, मतलब हर एक चीज का रिपोर्टिंग दो, एक्सेल शीट भरो, वेरी बोरिंग, वेरी बोरिंग। लॉन्ग रेपिटेटिव टास्क विदाउट क्रिएटिव स्पेस। हमको हर फ्राइडे, मैक्स में जब मैं जॉब कर रहा था, हर फ्राइडे हमको एक रिपोर्ट भेजना होता था। was मतलब I had to collect from 3 offices, put in one Excel sheet and send it to the main office, ऐसा था। and it was very boring, boring मतलब हाइट था उसका। अब उसमें भी क्या था, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना एक्सेल शीट एक बनाया, उसको अलग अलग कलर दिए। ओके, दैट वाज माय एक्सेल, दैट विल नॉट गो, वो अलग अलग कलर, फिर कॉपी पेस्ट करता था और कलर निकाल देता था और फिर मैं भेजता था। वो कलर देख के मेरे को थोड़ा एक्साइटमेंट लगता था, मैं भरता था, उतना मेरा क्रिएटिविटी यूज होता था। तो दैट वाज माय वे ऑफ फिलिंग अप द एक्सेल शीट, वो सब था। फीलिंग इग्नोर्ड, अनअप्रिशिएटेड, साइडलाइन, नॉट टॉकिंग, ऐसा हर बार साइडलाइन। हाँ हाँ, बाद में देखते, तेरा बाद में देखते हैं। रिजिड सिस्टम्स दैट डोंट अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी। औरंगाबाद की कंपनी का हमको कॉल आया था, एंड दे गेव अस, मैं पहले पूरा पीडीएफ प्रपोजल भेज दिया, दे सेंड एन एक्सेल शीट, इसमें भरो। तो मैंने मॉर्निंग आफ्टरनून 2 days का कैसे होगा वो मैंने पूरा लिख के भेजा। देन दे टेल नो नो नो, वी वांट दीज टॉपिक्स ओनली। बोले कि दीज टॉपिक्स आर वेरी एब्सोल्यूट टॉपिक्स, वेरी ऑब्सोलीट टॉपिक्स, एंड ये जो आपका रिक्वायरमेंट है उसको 100% रिजल्ट नहीं देगा। आई मीन इट विल नॉट गिव यू रिजल्ट्स। नो नो नो, वी ओनली वांट दिस, वी नहीं, इफ देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी एंड नो creativity allowed for me, then I can't work. So I rejected. It was a 3 lakhs ka project, just because it was not allowing us flexibility. And वो old, मतलब वो 3 C's of communication, ये क्या 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 बोल रहे थे, ऐसा all old school था पूरा, अर्थ एलिमेंट बैठा था ऊपर। एंड अनफॉर्चुनेटली तब मुझे ये मालूम नहीं था, सो आई रिजेक्टेड। आज मालूम है तो मैं कर सकता हूँ, बट दिस इज माई क्रिएटिविटी, इवन विदाउट नोइंग एलिमेंट्स आई रिजेक्टेड। डेडलाइंस फील रिस्ट्रिक्टिव। वी आर क्रिएटिव पीपल। अब बोलेंगे जैसे शब्बीर राइट्स पोएट्री, उनका उनका पोएट्री का म्यूजिक बनता है, ही राइट सॉन्ग्स, सब कुछ ऐसे करते हैं, और बोला कि मुझे 3 दिन में गाना लिख के दो, वेरी रेस्ट्रिक्टिव, नहीं होगा। बट हो सकता है कि 1 घंटे में भी एक ब्यूटीफुल गाना बन जाए, बट डेडलाइन दे दिया, हमारा क्रिएटिविटी स्टॉप हो जाता है। एनवायरमेंट विद नो सेंस ऑफ फन और एडवेंचर। ये इसका एक मस्त किस्सा है मेरे पास। मैं जब मैक्स में जॉब कर रहा था तो हमारा आईजेपी आता था, इंटरनल जॉब पोस्टिंग। सो कोई भी एक पोस्टिंग आया, रिक्वायरमेंट आया, एंड इफ यू आर क्वालिफाइड फॉर दैट, अप्लाई फॉर इट, ऐसा था वो। एंड यू कैन अप्लाई बाय डिफॉल्ट, एनीबॉडी कैन अप्लाई, ऐसा था। तो 2-3 बार ऐसा आता था, और मेरे जूनियर जो थे, रिपोर्टिंग जो मेरे ट्रेनर्स थे, वो बोलते थे कि प्रांतिक तुम क्यों नहीं अप्लाई कर रहा है, देख क्वालिफाइड फॉर दैट, तेरे इतना जो क्राइटेरिया था वो भी पूरा हो गया है। अरे पता नहीं, मन नहीं कर रहा है, मैं देखता हूँ। अहमदाबाद में एक ट्रेनिंग हो रहा था, जहाँ पे हेड ऑफिस से एक ट्रेनर आके हमको ट्रेन कर रहा था, अभिषेक नाम था उसका। तो मैं उसको पूछा, अभिषेक आई जस्ट वांट टू नो, बिकॉज आईजेपी आता है, मुझे अप्लाई करना है, हेड ऑफिस का माहौल कैसा है, मुझे वो जानना है। तो ठीक है, बताता हूँ। तो लंच टाइम बोल रहा था, मुझे अगर एक जोक क्रैक करना है तो मैं अपने साइड में कॉलीग जो है, मैं उसको, चल सीसी चल, सीसी इज वॉशरूम, दैट द कोड वर्ड। तो सीसी कर, ठीक है, वो जाएंगे वॉशरूम में, जाएंगे उधर जो क्रैक करेगा उधर हंसेंगे, फिर आएंगे फ्लोर पे काम करेंगे। क्योंकि वो फ्लोर पे एमडी सीईओ सब बैठे रहते एक ही लेवल पे, एक ही फ्लोर पे, वहां पे हा हा हु अलाउड नहीं है। मैं बोला मैं जिंदगी में कभी अप्लाई नहीं करेगा, जहां पे खुल के हंस नहीं सकते हैं वहां पे मैं जिंदगी में कभी नहीं अप्लाई कर। आई हैव नेवर अप्लाइड द हेड ऑफिस का जॉब, इवन आफ्टर हैविंग द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, नहीं, बिकॉज नो सेंस, नो फन। बीइंग टोल्ड टू स्टे स्टिल एंड स्टिक टू वन थिंग, नहीं होगा, बिकॉज वी वांट वैरायटी, वी वांट क्रिएटिविटी। एक ही चीज करो, एक ही जैसा रहो, नहीं होगा। लैक ऑफ एप्रिसिएशन फॉर इनोवेटिव थिंकिंग, ओके, नहीं। Too much of administrative detailed heavy work like the earth structure, and people who say constantly no or reject new ideas.
ओके, जो बार बार कुछ भी ये आइडिया लेके जा रहे हैं और नो बोल रहे हैं, ये अर्थ के पास जा रहे हैं, एक नया आइडिया है, उनको नो बोल, तो दे फील वेरी अपसेट, वेरी ट्रिगर्ड. हाउ विल यू नो एन एयर एलिमेंट इज ट्रिगर्ड? उनका बिहेवियर क्या होगा? अर्थ और एयर एलिमेंट, एयर 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 अगर अपसेट है तो वो वहां पे ज्यादा टिकेगा नहीं, वो विड्रॉ कर लेगा खुद को, जितना विड्रॉ मैंने कर, देखा है. मतलब वो आएगा नहीं, वो रीजन देते बैठेगा. हाँ, वो आएगा नहीं, रीजन देते बैठेगा. अगर वो रहेगा भी, दैट एयर विल स्टॉप कंट्रीब्यूटिंग आइडियाज. यस. वो जो चुप हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा एयर साइड में बैठा है. दे बिकम दैट साइलेंट, वो ऐसा बैठ जाएंगे. दे विल नॉट से अ सिंगल वर्ड, दे विल नॉट कंट्रीब्यूट. दे विल से हाँ हाँ आपने किया, बहुत अच्छा किया, आई डू दैट, इतना करके छोड़ देगा. नो जोक्स, नो फन, नो स्पीड मूवमेंट, कुछ नहीं रहेगा. पूरा शांत वो बैठेगा, सिर्फ काम करेगा, निकल जाएगा वो. सो दैट इज हाउ एयर ऑपरेट्स. नाउ ईथर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ईथर इज ऑलरेडी स्ट्रेस्ड. अब इसको और क्या स्ट्रेस दे सकता है? ये दे आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड, क्योंकि ट्रांजिशन चल रहा है, तो दे आर ऑलरेडी. और क्या स्ट्रेस दे सकता है? मूविंग टू न्यू सिटी और अनफेमिलियर एनवायरनमेंट. एनीथिंग न्यू, अब देख लो, एनीथिंग न्यू आएगा, सो दे आर ऑलरेडी स्ट्रेस. देख लो, सडन चेंजेस इन नेचर ऑफ वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग अप अ न्यू रोल, हायर लर्निंग कुछ करना है, एवरीथिंग. पर्सनल क्राइसिस चल रहा है, यानी कि उनका उनका तू तुम्हें में चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, घर वाले मान नहीं रहे हैं, गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, कुछ भी सब चल रहा है. और उसी वक्त पर्सनल प्रोफेशनल क्राइसिस भी आ जाता है. उसी वक्त उसको नौकरी से निकाला गया, उसी वक्त कोविड आ गया, उसी वक्त उसका बिजनेस फेल हो गया. पर्सनल क्राइसिस चल ही रहा था, बट वो अभी भी फेल हो गया. सो ये दीज आर ऑल एनीथिंग न्यू, एनीथिंग सडन हैपनिंग इन ईथर्स लाइफ. अडेप्टिंग टू न्यू पीपल एंड अनफेमिलियर डायनेमिक्स. ओके, बेचारा वो पंजाबी था, उसको साउथ इंडिया में उनको एक जॉब दे दिया, केरला में, वेयर नोबडी अंडरस्टैंड्स हिंदी, और ये पंजाबी को इंग्लिश नहीं आती है, तो करेगा कैसे? अ बिग स्ट्रेसफुल मोमेंट. एनवायरमेंट दैट फील्स ओवरली मटेरियलिस्टिक और सुपरफिशियल. ये आप देखोगे, सिर्फ सिर्फ पैसा या फिर क्या है सब. रिमेंबर, दे आर ऑलरेडी इन सेल्फ डाउट, दे आर ऑलरेडी इन लो सेल्फ एस्टीम. उसमें भी कोई, अरे मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस, कोई ऐसा दिखाता है, दे अगेन फील वेरी लो. सो इट बिकम्स अ वेरी हेवी बर्डन ऑन देम. बीइंग फोर्स्ड इनटू टास्क दैट फील मीनिंगलेस और पर्पसलेस. करना क्यों है, इसका जरूरत क्या है, ऐसा वाला फीलिंग आता है. रिमेंबर, देयर आर द चेंज एलिमेंट्स. सो उनका ये सवाल आता है कि इसी प्रकार से करना जरूरी है क्या, दूसरा कोई तरीका नहीं है क्या, इस प्रकार से आता है. लैक ऑफ टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, साइलेंस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. सो दे नीड सम सर्टन टाइम, दे नीड, मतलब वो थोड़ा सा अलग जाते हैं, सोचेंगे, फिर आएंगे, डिसीजन लेंगे, बट वो टाइम, रिफ्लेक्शन का टाइम नहीं मिल रहा है उनको, सो दे गेट अपसेट. बीइंग मिसअंडरस्टूड व्हेन एक्सप्रेसिंग इंट्यूटिव और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. बिकॉज वो चेंज एलिमेंट है, तो कुछ नया नया आइडिया लेके आएंगे, और उनको फील हो रहा है कि ये आई थिंक करना चाहिए, ये उनका एयर एयर एलिमेंट का थोड़ा क्वालिटी दिख रहा है, बट दे गेट वेरी अपसेट बिकॉज उनको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है कि ये क्यों करना चाहिए. कंटिन्यूअस ऑब्लिगेशन विदाउट द रूम फॉर सॉलिट्यूड. माने क्या है, उनको सिर्फ किसी का, अरे उन्होंने किया है तो मुझे भी करना है, उन्होंने हम मेरे लिए किया है तो मुझे भी करना है, सिर्फ ऑब्लिगेशन में लगे हुए हैं. बट उनका उनका अपना टाइम नहीं है, साइलेंस में नहीं है, अकेले कुछ अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे. ट्रिगर्ड. रिलेशनशिप्स अगर चल रहे हैं विदाउट डेप्थ और ऑथेंटिसिटी, अ बिग ट्रिगर, लाइक डिवोर्स रिलेशनशिप है, ओके, वेरी अनहैप्पी मैरिज चल रहा है. सो तू मैं बहुत बेकार चल रहा है, बिजनेस पार्टनरशिप इज नॉट वर्किंग वेल फॉर एग्जाम्पल. तो ऐसा चल रहा है, तो वहां पे डेप्थ नहीं है, वहां पे ऑथेंटिसिटी नहीं है, वहां पे मालूम है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, सो दे फील वेरी अपसेट. लाउड केओटिक सराउंडिंग उनको बहुत नहीं पसंद आता है. आप देखोगे तो जितने भी ईथर एलिमेंट है, अगर आपके न्यू एम्प्लॉयज अगर देखोगे खासकर, या न्यू ज्वाइनीज जो आपके बिजनेस में होंगे वेदांत, आप देखोगे
जब आपके सेमिनार होते हैं तो यू डांस देयर, राइट? कोई एंट्री करे सो यू डांस, राइट? आपके सेमिनार में वेदांत, न्यू पर्सन डज नॉट डांस। वो ऐसे देख रहे हैं, क्या चल रहा है, क्यों चल, इतना नाचना क्यों है, कोई आ रहा है तो। ओके, Right. ऑल ऑफ अ सडन न्यू ज्वाइनी हो गया है और वीकेंड को पार्टी रखा है, सो ये सहमा सहमा अलग से रहेगा। ऑब्वियसली वो जानता नहीं किसी को, बट उसको थोड़ा ऑड लग रहा है सब कुछ। ओके, फीलिंग प्रेशर टू फिट इन व्हेन इट डजंट अलाइन विद देयर वैल्यूज। ये मेरा वैल्यू सिस्टम नहीं है, फिर भी मुझे करना पड़ेगा। ब्राइबिंग इज नॉट माई वैल्यू, बट फिर भी मुझे ब्राइब करने बोल रहे हैं, ऐसा वाला चीज। कभी कभी कुछ सेल्स में ऐसे बोलते हैं ना, अरे यार, बोल देने का कि हाँ हाँ, आपको 20% बोनस दे देंगे, एक्स्ट्रा दे देंगे हम, बाद में देखते हैं ना, बाद में देख क्या होता है। सो यार झूठ कैसे बोलूं मैं, झूठ बोलना यार मेरा वैल्यू सिस्टम नहीं, मैं कैसे बोल दूं। सो दे फील वेरी प्रेशर्ड, so they get stressed out, ether gets more stressed. All right, so the whole idea is इन लोगों के साथ ये सारी चीजें नहीं करना। नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न अबाउट इफ इट इज हैपनिंग विथ यू, हाउ वुड यू मैनेज योर ओन स्ट्रेस। ओके, देयर इज अ एक्सटेंशन टॉपिक टू इट, हम उस पर भी बात करेंगे वो चीज। या करेक्ट रूपा? Yes, thank you, Prantik. So, thank you, everyone. If you have any challenges or any questions you have, you can actually post in the group also. So, we will get back to you either with audio message or I can also answer it. And I will be sending case studies. Case studies मैं भेजने वाली हूँ. So, please, जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ के उसको रिप्लाई कीजिएगा. ठीक है? जो पढ़ सकते हैं मतलब अनपढ़ लोग कितने हैं फिर ग्रुप में? I mean, नहीं, मेरा वैसा मतलब नहीं था. जिसको बोला था वो समझ गए, बस काफी है. ओके, तो इनफैक्ट मिस्टर शबीर काफी एक्टिव है उस ग्रुप में, वो हमेशा रिप्लाई करते हैं हर चीज का. सो यस, डू डू रिप्लाई. वो दैट विल हेल्प यू. इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट तत्वबोधि का कर लिया तो ओवरनाइट चेंजेस आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है. तो जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो चीज. यस. All right, then see you all on 19th. I will be also posting that in the group also. So 19th again, we'll meet as you said 8:30 to 9:30. 9:30 हम लोग ले लेंगे. Yes. Yeah. Okay. All right. See you all. Thank Thanks, you. Rupa. Bye. Thanks, Good Prantik. night. Thanks, everyone. Thank you so Bye. Good much. night. Take care. Good Bye. night. Good night.